Good afternoon. Today we will continue with the biomolecules. In biomolecules, today we'll start with the lipids. लिपिड्स लाइपो जहां भी टर्म आएगी लाइपो का मीनिंग होता है फैट. सो लिपिड्स और फैट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, what are lipids and how they are classified? So lipids are classified into simple lipid, conjugated lipid, and derived lipid. Simple lipid, conjugated lipid, and derived lipid. What are simple lipids? Simple lipids are made up of fatty acid and alcohol. Made up of simple lipid are made up of fatty acid and alcohol. ध्यान से देखें. Simple lipid are made up of there are three types of lipid: simple lipid, conjugated lipid, and derived lipid. Simple lipid are made up of fatty acid and alcohol, and they are further divided into one are neutral fat, or true fat, and waxes. ध्यान से देखें. सिंपल लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड, एंड डेराइव्ड लिपिड. Simple lipid, conjugated lipid, and derived lipid. So simple lipid are made up of fatty acid and alcohol. Now we are supposed to do what is fatty acid. जो भी टर्म आती है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि what is a fatty acid. Once again, lipids are divided into three: simple, conjugated, and derived. Simple, conjugated, and derived. What is a simple? Simple are they are made up of fatty acid and alcohol. Fatty acid and alcohol. तो ये फैटी एसिड क्या है? पहले हम इस बात को करेंगे. व्हाट आर फैटी एसिड? फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन कार्बन. फैटी एसिड, पहले हम फैटी एसिड करेंगे. फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बन्स. Long chain carbons having a carboxylic acid at one end. जैसे हम मान लीजिए एक बात करते हैं कि स्टेरिक एसिड है. चलो एग्जांपल नहीं, पहले हम करते हैं कि है क्या ये लॉन्ग चेन आ गया. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16. This is a long chain carbon compound. Long chain carbon compound having a carboxylic acid at one end. Having carboxylic acid at one end. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. Having carboxylic acid at one end. This is a carboxylic acid. ये carboxylic acid है. ये long chain carbon compound having carboxylic acid at one end. And these may be, this is again long chain carbon having a carboxylic acid
at one end, having carboxylic acid at one end. If it is simply all the carbons are saturated with hydrogen. This is all the carbons saturated with hydrogen. All the carbons saturated with hydrogen and having a अब तभी सैचुरेट होंगे जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तभी हर एक कार्बन सैचुरेट होगी हाइड्रोजन से. यहां देखें, सो दिस फैटी एसिड जिसमें हर एक कार्बन सैचुरेटेड है हाइड्रोजन के साथ एंड दे हैव द सिंगल बॉन्ड, ऐसे फैटी एसिड को हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. देखो ध्यान से, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. वेयर एज द फैटी एसिड विच इज नॉट suppose this is the saturated, this is the fatty acid जिसमें हर एक कार्बन, every carbon is not saturated with hydrogen, every carbon is not saturated with hydrogen. So in that case what we call, in that case we call it कि ये completely saturated नहीं है, completely saturated नहीं है. ये देखें, ये completely saturated नहीं है. And this type of fatty acid को हम कहेंगे unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid. तो पहला तो ये आ गया कि what is the fatty acid. फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हमें पता चल गया कि फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है जिसमें एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है. एंड अगर वो सैचुरेटेड है तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर वो सैचुरेटेड है, अगर हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उसको कहेंगे सैचुरेटेड, अगर नहीं है तो उसको अनसैचुरेटेड. तो अनसैचुरेटेड हैज डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हैज डबल बॉन्ड, वेयर एज सैचुरेटेड हैज सिंगल बॉन्ड. अब हम एक एग्जांपल करते हैं. स्टेरिक एसिड, ये दो, एक पामेटिक एसिड है, one is the palmitic acid and other is stearic acid. One is the palmitic acid and other is stearic acid. तो ये palmitic acid and stearic acid जो हैं, palmitic acid and ये stearic acid, ये stearic acid की जो फॉर्मूला है, इसमें जो n is equal to 18 है, n is equal to 18 और n is equal to 18. तो n is equal to 18 देखिए क्या है, जो ये फैट्स हैं, ट्रूली फैट्स हैं, इनमें होता है CN H2NO2, n नहीं है. तो देखें अब किस टाइप से CN, ये स्टेरिक एसिड का n is equal to 18, तो ये आ गया C18 H36O2. तो हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द स्टेरिक एसिड. स्टेरिक एसिड मैंने बताया कि हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी हम बायोकेमिस्ट्री अच्छी तरह कर सकते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस इज 18. तो देखिए ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है. तो यहाँ देखें ये आ गया H. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2. यहाँ देखिए ये सैचुरेटेड है सारे. CH2 कितने होंगे? 16 होंगे. CH2 ये देखें ध्यान से कितने होंगे? CH2 16 एंड COOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये आ गया स्टेरिक एसिड का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरिक एसिड. स्टेरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है. तो अब देखें स्टेरिक एसिड. अब हम बात करते हैं, फिर से चलते हैं सिंपल लिपिड पे. हम चलते हैं सिंपल लिपिड पे जहां से हमने शुरू किया था. तो सिंपल लिपिड में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज देयर इन सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड आर ऑफ टू टाइप. one is the neutral fat
वन इज न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल फैट और ट्रू फैट, और ट्रू फैट, एंड अदर इज वैक्सेस, अदर इज वैक्सेस। तो यहाँ फिर से हम डेफिनेशन पे चलेंगे। सिंपल लिपिड क्या था, हमने कहा था कि फैटी एसिड हैं प्लस एल्कोहल है, प्लस एल्कोहल है। देखो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चलना है हमने, फैटी एसिड एंड एल्कोहल। वेयर एज यहाँ क्या आया कि न्यूट्रल फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज अ एल्कोहल, यहाँ एल्कोहल, और वैक्सीज आर फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, अदर देन ग्लिसरॉल, ध्यान से देखें, अदर देन ग्लिसरॉल, ध्यान से देखते जाएं, ग्लिसरॉल। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल फैट की। न्यूट्रल फैट क्या है, हाउ द न्यूट्रल फैट ज्वाइन टुगेदर। न्यूट्रल फैट की बात करें, हम न्यूट्रल फैट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये ग्लिसरॉल है, वी हैव स्टेरिक एसिड है, तो हमारे पास ये CH3 आ गया, और यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। यहाँ देखें ये 18 आ गया, ये हमारे पास एक स्टेरिक एसिड है, दिस इज अ स्टेरिक एसिड, तो ये एक स्टेरिक एसिड है। और इस स्टेरिक एसिड के साथ हम न्यूट्रल फैट के एग्जांपल बताएंगे। इस स्टेरिक एसिड के साथ हमारे पास यहाँ देखिए 1 2 3 ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, दिस इज द ग्लिसरॉल, ध्यान से देखते जाएं, दिस इज ग्लिसरॉल, यहाँ OH है, यहाँ OH है, और यहाँ OH है, ध्यान से देखिए, दिस इज फैटी एसिड, दिस इज द फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है, दिस इज द ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। अब देखिए क्या जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखें। अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपस में ज्वाइन करेंगे, ये आपस में ज्वाइन करेंगे, और यहाँ से एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल कम आउट। तो जो बॉन्ड यहाँ बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम कहेंगे एन हाइड्रो बॉन्ड। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं हम, ऐसे कैसे बना, ये कैसे बना, ये इस टाइप से बना, ये CH3 था, ये CH2 16 था, और यहाँ ये C था, ये देखिए ये, और इस तरफ हमारे पास क्या था, इस तरफ हमारे पास ये था, देखिए H OH, और यहाँ OH H2O2 बना था, तो यहाँ O रह गया, ध्यान से देखें, यहाँ O रह गया, और जो O रहा इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, दिस बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे हम, इस बॉन्ड को हम कहेंगे दैट इज क्या, कौन सा बॉन्ड है, मैंने कल भी बताया था आपको, एस्टर बॉन्ड है, ये बन गया एस्टर बॉन्ड बना है, प्लस क्या बन गया, वाटर बाहर निकल गया, ये देखिए वाटर बाहर निकल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, तो ये क्या बना, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल फैट है। न्यूट्रल फैट में जब स्टेरिक एसिड जुड़ता है तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टेरिक एसिड प्लस अल्कोहल जुड़ता है तो इसको कहेंगे मोनोस्टेरिन, व्हाट वी कॉल इट, मोनोस्टेरिन। ध्यान से देखो, दिस इज मोनोस्टेरिन, और मोनोग्लिसराइड, मोनोस्टेरिन आ गया, तो दिस इज मोनोस्टेरिन बना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारे पास CH3 था, ये हमारे पास CH2 था 16, और ये हमारे पास ये, अब यहाँ हमारे पास क्या बना, यहाँ हमारे पास O, दैट इज ये एस्टर बॉन्ड बना, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास इस टाइप से है स्ट्रक्चर। अब एक और स्टेरिक एसिड आएगा, ध्यान से देखते जाएं, CH3 CH2 16 CO and here O, so what is there, अब ये एक और बन गया, तो यहाँ कितने, 2 मॉलिक्यूल पानी के निकल गए। देन एक और आता है, दैट इज CH3 CH2 16 C, तो ये 3 आ गए। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना, प्लस
3H2O, 3 मॉलिक्यूल बाहर निकले। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 एस्टर बॉन्ड बने, 3 एस्टर बॉन्ड बने। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? इसको हम कहेंगे, अगर जनरलाइज करेंगे इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। और अगर स्टेरिक एसिड, यहाँ ये फैटी एसिड स्टेरिक एसिड है, तो इसको बोलेंगे ट्राइस्टेरिन, ट्राइस्टेरिन। तो ये आपको पता चल गया। अब दिस यू हैव कम टू नो कि व्हाट इज द लिपिड, व्हाट इज लिपिड, लिपिड क्या है, मोनो जो सिंपल लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड का पता चल गया, लिपिड का पता चल गया। अब हम इसको एक बार फिर से देखेंगे, फिर आएंगे इसकी क्लासिफिकेशन पे कि लिपिड आर, पहला था सिंपल लिपिड, पहला था सिंपल लिपिड, देन कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड होता है जिसके साथ कोई और ग्रुप जुड़ा होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड। एंड देन वी हैव द डेराइव्ड लिपिड, एंड देन वी हैव द डेराइव्ड लिपिड, एंड वी हैव डेराइव्ड लिपिड। तो देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सिंपल लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। तो देखें ये जो कंजुगेटेड लिपिड है, ये अब हम ये पहले इसको यहाँ देखेंगे हाउ दिस ये कैसे बनता है कि सिंपल लिपिड तो हो गया वह ना, फैटी एसिड है, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ता है या अल्कोहल जुड़ता है, और इसको कहते हैं सिंपल लिपिड। कंजुगेटेड में क्या हुआ कि हमारे पास ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है सपोज, इस फैटी एसिड के साथ ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, इसके साथ एक ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, ये ग्लिसरॉल है। तो क्या होता है, देखें ध्यान से, तो क्या होगा, इसमें से एक फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, एक फैटी एसिड चेन की जगह, यहाँ बड़े ध्यान से सुने, एक फैटी एसिड चेन की जगह, एक फैटी एसिड फर्स्ट या थर्ड फैटी एसिड की जो फैटी एसिड है उसको, उसकी जगह कुछ और चीज़ ज्वाइन हो जाती है, और वो कहते हैं कंजुगेटेड लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड। अब आप सोचोगे क्या वो क्या चीज़ ज्वाइन हो जाती है, तो इसको लर्न करने का तरीका है एलपीजी, 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 एल फॉर लाइपोप्रोटीन, एल फॉर लाइपोप्रोटीन, पी फॉर फॉस्फोलिपिड, पी फॉर फॉस्फोलिपिड, एंड जी फॉर ग्लाइकोलिपिड, जी फॉर ग्लाइकोलिपिड। ध्यान से देखते हैं, देखते जाएं, कंजुगेटेड लिपिड, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो लाइपो इज रिलेटेड टू लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइको, ग्लाइको इज रिलेटेड टू, ग्लाइको इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। तो आए अब हम इसको करते हैं कि एलपीजी, 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 दैट इज एल फॉर लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में क्या हुआ कि ये जो फैटी एसिड की चेन थी, ये देखिए ये फैटी एसिड की चेन थी, ये फैटी एसिड चेन है, ये फैटी एसिड चेन के साथ ये देखिए ये ग्लिसरॉल था, ये ग्लिसरॉल था, ये भी फैटी एसिड चेन थी, फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन, सॉरी फैटी एसिड चेन सी के साथ जुड़ेगी, ये फैटी एसिड चेन है। जो थर्ड फैटी एसिड चेन है, जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, प्रोटीन। जब ये इट इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लाइपोप्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉस्फोलिपिड, 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 एलपीजी। याद करने का तरीका, एलपीजी जैसे गैस होती है एलपीजी, पर इसको याद कैसे करना है हमने, ये देखिए अब यहाँ क्या था, ये देखें कि ये एक लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड है, और इस लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड में, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड में यहाँ ये देखिए ग्लिसरॉल है, अल्कोहल है, एंड this here we have a phosphoric acid H3PO4, H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं इसको। फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ता है लिपिड के साथ तो उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट जब जुड़ा किसके साथ, लिपिड के साथ। देन वी हैव अ नेक्स्ट इज वी हैव अ, यहां देखें
अब आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा, क्योंकि फैटी एसिड का पहले पता चलना बहुत जरूरी था. एंड वेयर ग्लाइको, ग्लाइको रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट. व्हेन कार्बोहाइड्रेट तीसरी चेन की जगह कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड. तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड. तो ये देखिए, ये अब आपको पता चल गया व्हाट इज द सिंपल लिपिड, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड व्हाट इज द डेराइव्ड लिपिड. तो ये तीन आगे, पहला आ गया सिंपल लिपिड, देन कॉन्जुगेटेड लिपिड, देन वी हैव डेराइव्ड. डेराइव्ड लिपिड में ये पता चल गया आपको, सिंपल लिपिड में जब कोई एडिशनल चीज जुड़ जाए तो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा. वेयर एज डेराइव्ड जो लिपिड है दैट इज नॉन फैटी एसिड, दैट इज नॉन फैटी एसिड लिपिड. नॉन फैटी एसिड लिपिड कि इनमें क्वेश्चन कंपटीशन में आता है कि क्या ये नॉन फैटी एसिड. नॉन फैटी एसिड का मीनिंग क्या हुआ? नॉन फैटी एसिड दैट इज जहां फैटी एसिड्स ना हो, फैटी एसिड ना हो. इनमें फैटी एसिड है, इनमें फैटी एसिड है, तो ये आ गया नॉन फैटी एसिड लिपिड. जैसे एक इसमें मोस्ट कॉमन स्टीरॉल्स, स्टीरॉल्स क्या है? दे आर मोस्ट कॉमन स्टीरॉल दैट इज फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग. देखिए ऐसे हैं ये फोर फ्यूज्ड. ये एक कार्बन रिंग है, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. फ्यूज्ड है. ये देखें, ये आ गया फोर फ्यूज्ड कार्बन रिंग. तो इसमें स्टीरॉल, द मोस्ट कॉमन स्टीरॉल. अब स्टीरॉल है, इस स्टीरॉल में अगर हम यहाँ OH लगा देते हैं तो इट इज द मोस्ट कॉमन स्टीरॉल. मोस्ट कॉमन स्टीरॉल इज कोलेस्टेरॉल. कोलेस्टेरॉल इज द मोस्ट कॉमन. अदर जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं, दे आर टेरपिन्स, दे आर प्रोस्टग्लैंडिन्स. ऐसे प्लांट स्टेरॉइड है, तो एनिमल स्टेरॉइड की बात की थी. प्लांट स्टेरॉइड्स आर एर्गेस्टेरॉल. प्लांट स्टेरॉल आर एर्गेस्टेरॉल, जिसको फाइटोस्टेरॉल भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज फाइटोस्टेरॉल. तो ये देखिए, पहले लिपिड का आपको मैंने बेसिक पार्ट बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं. ये लिपिड तीन टाइप के हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड. तो डेराइव्ड लिपिड क्या क्या चीज़ें आ गई मैंने आपको बता दिया कि हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर, कि ये कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं. तो लेट अस एक्सप्लेन देम इन मोर डिटेल. यहाँ देखें, वी आर supposed to discuss them in more detail. यहाँ देखें ध्यान से कि पहले आ गया लिपिड्स. क्या है? लिपिड्स आर दे आर हाईली वेराइड सब्सटेंसेस, नेमली कुकिंग ऑयल. एग्जांपल है बटर, घी, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल, इसेंशियल ऑयल, नेचुरल रबड़, सम प्लांट पिगमेंट्स, मेंथॉल, विटामिन ए. देखिए ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन है, यूकलिप्टस ऑयल. द लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर बट दे आर असेंबल्ड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय डिहाइड्रेशन, वाटर के निकलने से. दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स बट नॉट लार्ज एनफ टू कॉल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर अंडर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नॉट अंडर द मैक्रो मॉलिक्यूल. दे आर नॉन पोलर एंड देयरफॉर insoluble in water, but they dissolve in non-polar organic solvents such as ether, chloroform, acetone, benzene. They disperse in water uniformly as a minute droplets forming an emulsion. तो ये देखिए, अब इसमें ये हम बात करेंगे सिंपल लिपिड. These are the ester of fatty acid with various alcohols, various fatty acid and alcohol, as I have told you. They are further of two type, neutral fat, true fat and waxes. These are the ester of fatty acid with glycerin. They are also called as glyceride भी कहते हैं इनको. Whereas waxes are
एक्सिस क्या है, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल विच आई हैव टोल्ड यू. Compound or conjugated lipid, these are ester of fatty acid with alcohol but contain some other substances also. There are 4 types. यहाँ 4 टाइप का दे दिया हमने, क्यूटीन के भी बारे में दे दिया. तो यहाँ phospholipid which have nitrogen containing base and phosphate group in addition to the fatty acid and glycerol. Glycolipid, glycolipid का बताया जैसे कार्बोहाइड्रेट है इनमें. Then we have lipoprotein, they have lipid and proteins. Cutin and suberin ये भी हम ऐड कर सकते हैं, they are compound lipids. Then आ गया derived lipid के बारे में. Derived lipid, they are lipid like substances such as sterols which I have told you, terpenes, prostaglandins, but they are non-fatty acid. They are non-fatty acid. So now coming to neutral fat or true fat or glyceride. The neutral fat, true fat are composed of carbon, hydrogen, oxygen like carbohydrate but have a far fewer oxygen atom. तभी देखिए इनका बोला था CnH2nO2, ऑक्सीजन कम है इनकी, क्योंकि COH जो लास्ट में लगा है वही ऑक्सीजन है, बाकी नहीं है. तो ये आ गया अबाउट द न्यूट्रल फैट और ट्रू फैट और ग्लिसराइड के बारे में. तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल. ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया. बच्चे जनरली कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल, ये कहते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के और 3 फैटी एसिड. नहीं, एक ग्लिसरॉल का एक ही मॉलिक्यूल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है 3 कार्बन हैविंग बियरिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए ये मैंने ऐसे आपको करवाया, इस टाइप से करवाया मैंने आपको. यहाँ देखें, ये देखिए, ये आ गया ग्लिसरॉल. तो फैटी एसिड आर नेम्ड सो बिकॉज सम ऑफ देम अकर इन फैट. फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम with each carbon atom forming four bonds to form atom. It has a carboxylic group at one end and hydrogen atoms bonded to all or most of the carbon atom, forming hydrocarbon chain. The carbon hydrogen bonds are non-polar, therefore the hydrocarbon chain does not dissolve in water. The carboxylic group gives the molecule its acidic property, जो carboxylic group है, as it is dissociated into hydrogen and negatively charged CO group. Because the carboxylic group contain polar and OH groups, it tends to dissolve in water even though the rest of the fatty acid molecule will not. Dissociation can't occur when the fatty acid is a part of fat molecules, hence name neutral fat. ये पूछा जाता है. Water insolubility of the lipid, ये भी very important, is due to the repulsion present between the non-polar lipid molecule and polar वाटर मॉलिक्यूल. मोस्ट फैटी एसिड कितने होते हैं? 14 से लेकर 22 तक, पर मोस्टली 16 से 18 होते हैं. तो ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इनकी हम जैसे लिख सकते हैं. सैचुरेटेड में आ गया पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड. वेयर अनसैचुरेटेड में आ गया ओला. ऐसे याद करना आपने. ओला ये N=20 है और ये N=22 है. तो इनका जो ये अब हम बात करेंगे ओला. O फॉर ऑयलिक एसिड एंड L फॉर लिनओलिक एसिड सिंपल. वेयर L फॉर लिनोलेनिक एसिड एंड इट इज फॉर अरेक्डियोनिक एसिड. ये अरेक्डियोनिक एसिड के बारे में. तो ये आ गया ओला. ये दोनों में डिफरेंस आ गया. अब इसको ओला मैंने क्यों किया? ओला इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ ओला इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है. इट हैज़ 1 2 3 4 डबल बॉन्ड्स. तो इन दिस वे ये हम फैट के बारे में, ओला के बारे में. यहाँ फिर हमने किया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं. इन सैचुरेटेड में सारे के सारे लिंक्ड होते हैं. ये फॉर्मूला इसका बताया CnH2nO2 है. वेराज ये आगे इनकी डिटेल दी गई है. सैचुरेटेड ऑयलिक एसिड, ये ओला के बेस पे ओला. दिस इज CnH2n. ये जो फॉर्मूला है इसका, ये होगा CnH2n -XO2. X इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड कि कितने डबल बॉन्ड है. तो ये इसमें 1 डबल बॉन्ड है, 2 हैं, 3 हैं और 4 हैं. इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनका फॉर्मूला, जो कंपटीशन में, हायर कंपटीशन में पूछा जाता है. देन फैटी एसिड के क्या क्या फॉर्मेशन, फैटी एसिड के क्या क्या फंक्शन है,
उनके बारे में आपको पता करना, ये यहाँ दिया गया है। देन वी हैव द वैक्स। वैक्सीज क्या क्या हैं, कौन कौन से वैक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं? वैक्सीज आर लिपिड विच आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड विद लॉन्ग चेन सैचुरेटेड लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अल्कोहल, अल्कोहल के और इसके बने होते हैं। तो इसमें एक देखिए जो हनी बी सिक्रीट करती है उसको होते हैं बी वैक्स। कहाँ से? एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर हनी बी इसको सिक्रीट करती है। देन वी हैव वूल वैक्स, वूल फैट, वूल फैट इट इज़ अ वूल ऑफ शीप में वो भी वैक्स होता है। सीबम इट इज़ अ फैटी सीबेसियस ग्लैंड स्किन में हमारे। सेरुमेन ये ईयर वैक्स होता है, हमारे ईयर में होता है ईयर वैक्स, वैक्सी सिक्रीशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी प्रोटेक्टिव। ऐसे ही वैक्सीज प्लांट वैक्सीज हैं ये, और पैराफिन वैक्सीज हैं दैट इज पेट्रोलियम से डिराइव्ड होते हैं। देन वी हैव फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की देखिए क्या डिटेल हमने करनी है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉस्फोलिपिड बेसिकली क्या है कि ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड ये दो फैटी एसिड टेल हैं, ये फैटी एसिड की चेन है दो, और ये हेड है, ये हेड है, दैट इज हेड एंड टेल। और ये हेड और टेल कैसे हुई? ये हेड और टेल इस टाइप से हुई कि यहाँ देखें ये हमारे पास अल्कोहल है, इसमें ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये स्पोइल लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। वेर एज यहाँ एक फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोरिक एसिड आ गया, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसका एक हेड बन गया, इसका एक हेड बन गया, और ये दो जो हैं दे आर फैटी एसिड चेन, दे आर फैटी एसिड चेन। तो इस टाइप से जब हम वी डिराइव्ड इट फॉर ये हम इस चैप्टर को करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे भी इसके इस टाइप से नोट्स हैं, ग्लाइकोलिपिड क्या है, फंक्शन क्या है, क्यूटिन क्या है, सुबेरिन क्या है, स्टीरॉयड क्या है, प्रोस्टग्लैंडिन्स क्या है, तो इसको आप रिटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये चैप्टर था अबाउट द ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक वाज अबाउट द लिपिड्स, जिसको हम फैट कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह आप यहाँ से करें हर एक पार्ट को, एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and you can do it well.